friends, welcome back to GHK Diet by Dr. Teji Sarna, PhD in Nutrition from India. Today I'll be sharing with you simple lifestyle modifications for hormonal balance. Number 1, your diet should include carbohydrate, proteins and fats along with fiber, and remember, eat more healthy fat. That means you need to have more of nuts and oil seeds, almond, avocado, and you need to ditch the trans fat. Skipping of meal is a big no-no. No intermittent fasting, you need to poop properly. That means regular bowel movement has to be there. Focus on sleep, eat regularly and be physically active. As far as possible, try and have fresh air throughout the day. Focus on meditation and remember that breathing exercises helps a lot. Point of caution that you should not have plastic in your kitchen and avoid the use of non-stick cookwares. Simple things for a healthy life. और औसतन देखा गया है कि लोगों को लगता है कि नींबू से ज़्यादा विटामिन सी किसी भी चीज़ में नहीं। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें लेमन से ज़्यादा विटामिन सी है, क्योंकि हमें लगता है कि सारा विटामिन सी सिर्फ लेमन में है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ फूड आइटम्स जो हैं विटामिन सी रिच। स्टार्टिंग इज गुआवा, अमरूद, कीवी, पपाया, ऑरेंजेस, ब्रोकली, टमेटोज, लाल शिमला मिर्ची, स्ट्रॉबेरी, केल और बहुत सारा विटामिन सी होता है हरी मिर्ची और आंवले में। तो धीरे धीरे इनको अपने खाने में इंक्लूड कीजिए रोज। अपना विटामिन सी लेवल बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए और एंजॉय कीजिए। And today I'll be sharing with you few lifestyle habits that make you age faster. So to look young, to age gracefully, few habits you need to change. Too much of sitting. Do you know? Sitting is the new smoking. So quit smoking. That means quit sitting for a very long time. Keep on moving around. Intake of too much of processed food throughout the day for a very long period can be a major cause for aging. Lack of sleep, too much of alcohol, stress and loneliness will add to the package of aging. Keep on eating healthy food items. Eat fresh fruits and vegetables. Exercise regularly. Wash your face with cold water as much as you can. Have lots and lots of fiber. Drink enough water. So dear friends, age gracefully. Stay happy, stay cool, stay young till we meet again. And in this world, almost 80 to 90% people are suffering from joint pains. Now these pains are aggravated from your inflammation, as inflammations are caused by faulty diets where you have lots and lots of sugars, lots and lots of alcohol and saturated fats. Today I'll be sharing with you 10 foods to include in your diet per week so that you can be relieved of your joint pains. Now these foods are rich in antioxidants, omega-3 fatty acids, very good in few vitamins, especially vitamin A and C, which fights inflammation and builds immunity. So what are these? These are dark green leafy vegetables, avocado, green tea, cherries and fatty fish. I repeat, dark green leafy vegetables, avocado, green tea, cherries and fatty fish. What about the next 5? Flax seeds, walnuts, ginger, citrus food items and all the root vegetables which are orange in color. Carrots and sweet potatoes. Now all these food items that I discussed yesterday and today are very rich in antioxidants, will fight inflammation and will give you relief in joint pains. Omega-3 fatty acids have good amount of vitamin A and vitamin C. These all build your immune system and fight against inflammation. So do have these once a week so that your joints work properly and you don't have pain in them. सर्दियाँ आ रही हैं और विंटर्स में बहुत मुश्किल होता है पानी पीना, प्यास ही नहीं लगती। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कैसे आप पानी पी सकते हैं। आई एम शेयरिंग टिप्स विथ यू कि कब कैसे पानी पीना चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डू नॉट मेक थर्स्ट अ पैरामीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। प्यास लगे चाहे नहीं लगे, पानी तो पीना ही है। तो नंबर 1, जब भी आपको लगे कि थोड़ी सी भूख लगी है तो सबसे पहले पानी पी लीजिए। हो सकता है आपको प्यास लगी हो, हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते कि प्यास लगी है कि भूख लगी है। तो पहला टिप ये है कि आप पानी पी लीजिए, आधा ग्लास पानी पी लीजिए। जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ आपको, योर ग्लास ऑफ वाटर शुड बी स्मॉल इन साइज एंड ड्रिंक वाटर सिप बाय सिप। कई बार ऐसा होता है कि आपको प्यास लगी होती है और आप कुछ खा लेते हैं और प्यास फिर भी लगती रहती है और फिर भी आप खाते जाते हैं। तो दैट्स वन थिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ।
सेकेंड थिंग, जब आप नींद से जागे तब आपको 1 से 2 ग्लास पानी पी लेना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलती कि आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, पानी जरूर पीना चाहिए। मेक श्योर दैट टी एंड कॉफी शुड नॉट बी योर फर्स्ट ड्रिंक। सादा पानी पीजिए, चाहे नींबू डालिए चाहे शहद डालिए, उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगी। फिर तीसरी बात आती है कि आपको जब भी पसीने आए, whenever you sweat you should drink water. Do not think कि बहुत सारा पसीना आए तो बहुत सारा पानी नहीं पीना है। सिप सिप करके पानी पीते रहिए। स्वेटिंग मीन्स दैट यू आर लूजिंग वाटर। डिहाइड्रेशन हो सकता है अगर आप स्वेटिंग के बावजूद भी पानी नहीं पीते हैं। स्वेटिंग कब होती है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, या जब आप स्ट्रेस में होते हैं। सभी कंडीशंस में पानी पीना बहुत जरूरी है। मेक श्योर दैट यू ड्रिंक वाटर बिफोर एक्सरसाइजिंग, ड्यूरिंग एक्सरसाइजिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइजिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बीमार होते हैं, whenever you are sick, it is very important to drink water, क्योंकि बुखार में पानी का मेजर रोल हो जाता है बॉडी के टेम्परेचर को नीचे लाना। अगर आप पानी बुखार के टाइम में अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो बुखार नीचे लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस समय पानी ज़रूर पीजिए। सिप सिप करके पानी पीजिए। जब आप ट्रैवल करते हैं तो बॉडी स्ट्रेस में होती है, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट बॉडी इज गोइंग अंडर स्ट्रेस। तो बहुत ज़रूरी है पानी पीजिए। बी इट अ ट्रेन ट्रैवल, बी इट अ प्लेन ट्रैवल, और बी इट अ बस ट्रैवल, और बी यू आर ट्रैवलिंग ऑन योर ओन और इन योर कार और समथिंग एल्स। Whenever you are traveling for long distances, keep on sipping water. जब भी आप मसाज ले रहे होते हैं, बॉडी मसाज ले रहे होते हैं, तो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है पानी पीना, क्योंकि आपकी मसल्स को टोनिंग हो रही होती है, मसल्स सॉफ्ट हो रही होती हैं। तो ऐसे केस में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। मसाज कराते समय थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पीते ज़रूर रहिए। स्पेशली लेडीज, जब आपके पीरियड्स आने वाले हों तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। रिसेंट स्टडीज़ में बताया है कि अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो यू कैन हैव डिसमेनोरिया और बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं। तो जो लेडीज़ पानी पीती रहती हैं उनके पीरियड्स थोड़े आराम से आते हैं। कमेंट येस और नो अगर आपको लगता है कि आप पानी पीते हैं और उसी की वजह से आपके पीरियड्स थोड़े नॉर्मल आते हैं। नेक्स्ट नंबर है पीक दोपहर में। पीक आफ्टरनून में 12 बजे से लेकर 4 बजे के आसपास आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम है आपको नहीं रियलाइज होता कि बहुत गर्मी है, आप खा भी रहे होते हैं। तो वट एवर यू आर डूइंग, इवन इधर यू आर ईटिंग एट होम और ईटिंग पिज्जा आउटसाइड और हैविंग एनी हेल्दी ड्रिंक और स्नैक, पानी बहुत ज़रूरी है उस समय साथ पीना। जब आपका सिर दर्द हो तो बहुत ज़रूरी है पानी पीना, क्योंकि सिर दर्द का इंस्टेंट रिलीफ है पानी पीना। कई बार लोगों को नहीं ध्यान रहता कि भूख और प्यास से सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में सिर दर्द के लिए रामबाण इलाज होता है पानी। माइग्रेन से परेशान हैं उनके लिए पानी तो बहुत अच्छा वरदान है। थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए जब तक कि आप डॉक्टर के पास नहीं पहुँचे। खाना खाने से पहले कुछ लिक्विड लेना चाहिए, तो मैं एडवाइस करती हूँ नींबू पानी लीजिए, चिया सीड्स वाला वाटर लीजिए, या कोई कॉन्कॉक्शन लीजिए विच बिकम्स अ पार्ट ऑफ वाटर। और अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं तो पानी आपका बहुत अच्छा साथी है। मैं बहुत अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ और लिंक भी शेयर करूँगी उन सब वीडियोस के जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से पानी पीना चाहिए, क्या है सही तरीका पानी अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, और कैसे हेल्दी स्किन के लिए पानी आपका गो टू थिंग है। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जो ध्यान रखने वाली हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, क्योंकि जब मैंने मिस्टर ब्रूस ली की वीडियो शेयर की थी, जब रिसर्चर्स ने बताया था कि उनका ध्यान शायद बहुत ज़्यादा लिक्विड्स या पानी पीने से हो सकता है, उसके बाद मेरे पास बहुत क्वेरीज आई थी, बहुत क्वेश्चंस आए थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और पर्सनल चैट पे कि कैसे कब कितना पानी पिया जाना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कितना पानी पीना चाहिए, और इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि कब कब पानी पीना चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। डू शो योर लव टुवर्ड्स योर हेल्थ बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड प्रपोजिंग इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। जाते जाते बेल आइकन जरूर दबाएं सो दैट यू आर नोटिफाइड फॉर ऑल माय अपकमिंग वीडियोस। आती रहूंगी मैं ऐसे ही और वीडियोस के साथ। और शुगर की सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि हमें शुगर क्यों छोड़नी चाहिए, आपको क्यों शुगर क्विट कर देनी चाहिए। Since all these days I have been talking about how to stop sugar, when to stop sugar, do not quit it immediately, what are the health benefits, how to manage sugar cravings, और बहुत सारी चीज़ें चीनी छोड़ने के बारे में, शुगर छोड़ने के बारे में। तो आज मैं आपको बताती हूँ क्या क्या फ़ायदे होते हैं जब आप चीनी खाना छोड़ देते हैं, मीठी चीज़ें खाना छोड़ देते हैं। 1.
आपका हार्ट हेल्दी हो जाता है चीनी छोड़ने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि हार्ट के लिए शुगर बहुत हानिकारक है। वजन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और धीरे धीरे हार्ट पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो अपने हार्ट के लिए, आपके दिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीनी खाना छोड़ दीजिए। एक अच्छी स्किन के लिए, एक ग्लोइंग स्किन के लिए, एक हेल्दी स्किन के लिए चीनी बहुत खतरनाक है। चीनी क्या करती है, ब्लेमिशेस आते हैं, एक्ने आते हैं, आपकी स्किन के अंदर जो कोलेजन है और इलास्टिन है, बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक लेने से उस पर बहुत इल इफेक्ट होता है, बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है आपकी स्किन पे। जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, दे हैव प्रीमेच्योर एजिंग। सो चीनी खाना बंद कीजिए। आपके जिगर के लिए, आपके लिवर के लिए चीनी बहुत हानिकारक है। रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि एक्सेसिव शुगर इनटेक, स्पेशली शुगरी ड्रिंक्स एंड जूसेस एंड शुगर itself is the leading cause of non-alcoholic fatty liver। तो अपनी बॉडी को चीनी से दूर कीजिए या चीनी को बॉडी से दूर कीजिए और अपने जिगर का, अपने लिवर का ध्यान रखिए। इतने सारे ऑर्गन्स की बात हो गई, तो ब्रेन को कैसे पीछे छोड़ सकती हूँ मैं? बहुत ज़रूरी है आपके हेल्दी ब्रेन के लिए, आपके शार्प ब्रेन के लिए आपको चीनी छोड़नी पड़ेगी। ऑल्दो ब्रेन नीड्स शुगर, बट वो शुगर और भी बहुत सारे फाइब्रस सोर्सेज से आ सकती है, न्यूट्रिशियस सोर्सेज से आ सकती है। चीनी और शुगरी ड्रिंक से ही क्यों आनी चाहिए, तो वो छोड़ देनी चाहिए। और बचपन में याद है आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स और स्पेशली आपकी मम्मी और आपकी दादी, आपकी नानी ज़रूर बोलती थी ज़्यादा मीठा खाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे। सो टूथ, आपके जो दांत हैं वो आपकी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है, और अगर चीनी उसको खराब कर सकती है तो आप सोचिए आपकी बॉडी के लिए कितनी नुकसानदेह है। रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि कम चीनी खाने से डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है। रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि कैंसर सेल्स जब हैं बॉडी में आपके, तो वो कैंसर सेल के लिए फूड होता है चीनी, उनकी खुराक होती है चीनी और शुगर, क्योंकि कैंसर सेल्स ग्रो एंड थ्राइव इन शुगर। बहुत ज़रूरी है अपनी सेहत के लिए आपको चीनी जल्द से जल्द छोड़ना। बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स और शुगरी आइटम्स खाने से आपको हो सकता है डिप्रेशन, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज़। तो बहुत ज़रूरी है अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए, अपनी सेहत के लिए चीनी छोड़िए, स्वस्थ रहिए। और बहुत सारे सोर्सेज हैं चीनी के, शुगर के, मीठे के, और वो मैं आपको रोज बता रही हूँ। चीनी छोड़नी थोड़ी मुश्किल होती है, बट येस, आई एम देयर टू सपोर्ट यू इन योर जर्नी। सो छोटी छोटी सी बातें हैं, ध्यान रखिए अपनी सेहत का, अपने दिल का, अपने दिमाग का, अपने जिगर का, और अपने दांतों का, और अपनी स्किन का। स्टे यंग, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर इनको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड शो योर लव टुवर्ड्स योर हेल्थ। Stay tuned for my more videos on sugar and related issues. Bye.